fellow viewers. Today we have with us Dr. Sudha Malya, who is the Chancellor at Eklavya University. Ma'am was born and brought up in Meerut, UP. She completed her primary education from Sophia School, Meerut, and then went to RG School. She completed her BSc and MA in Indian History from Meerut University. Growing up, she had a keen interest in cultural and sports activities of the college, and has been the recipient of several prizes and trophies in the area of debates, dancing, and acting. She went on to do a PhD on the study of dance and music in ancient art of MP from HS Gore University, Sagar, and has since present at numerous conferences in India and in abroad. An active contributor of socio-political, cultural arts, historical, religious, spiritual, educational activities for last 25 years, ma'am has continuously undertaken activities targeted at social and cultural development, economic upliftment, and educational progress of the women and the youth. Welcome, ma'am. We are glad to have you today with us on our platform. Yeah. Hello, everybody. Yes, Sakshi? So, ma'am, to begin with the interview, we would like to ask you first, what have been the key factors that kept you connected with the industry in education sector? Sakshi, education मेरे अस्तित्व का पर्याय है. It is the core of my existence. Education is there in my blood, and I'm deeply interested in education and imparting education right from the very beginning. When I got married, I used to go for honorary teaching in a degree college. I always thought that I would be able to impart and transfer the knowledge which I have gained, which my gurus have given me, and which I have been benefited with, and the lacunas and those things which I have not been able to receive. I should be able to give that. But truly speaking, I have not been able to do that what I wanted to do all the time. And when I used to go to teach, take honorary classes of history in the degree college here at Damoh, once the principal of that college commented on me, "You are simply an honorary teacher of this college." And that day when I came back, when I reached home, I cried a lot, and I told my father-in-law, "This principal is just misbehaved with me, and I'm giving them free services even then." And then my father-in-law said that, "Why, you don't have to be disturbed with this. Don't worry about it. That principal is just nothing." But the principal was suffering from an inferiority complex. And that day, I don't know whether it was at the back of my mind that someday I would be starting my own college. I can employ the principals. I never knew that I would be starting or establishing an engineering college, a nursing college, and one day my own university. I used to think about Vanasthali University. I used to think about symbiosis. But then I really don't know. I used to contemplate on this, that education has to be imparted it should be imparted in the manner it had been. It was imparted in the ancient times. I wanted to establish a Gurukul, but I could not. Sometimes we become part of the system, part of the routine system. We also, हम उससे अलग नहीं हो पाते. हम उस रॉट सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं. पर एजुकेशन मैं हमेशा से मेरे अंदर ये बहुत बड़ी क्लैरिटी थी, स्पष्टता थी कि शिक्षा के बगैर भारत का भविष्य नहीं बन सकता. और मैं ये देखती थी, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं महसूस करती थी कि भारत में हमने, स्वतंत्र भारत में हमने पूरी शिक्षा का स्तर गिरा दिया है, और हमारे देश में हमारे शिक्षाविदों को और किसी को शिक्षा की चिंता ही नहीं. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश की शिक्षा की पद्धति और शिक्षा के हमारे जितने HRD मिनिस्टर शुरू के हुए वो मुस्लिम्स नहीं होते. Pardon me for saying so, because they were imparting their own culture. They didn't know the ABCD of the Indian culture, भारतीय culture. भारतीय संस्कृति का अगर ABCD आपको पता नहीं है,
अगर वो विद्वान है इस्लामिक कल्चर के, तो इस्लामिक कल्चर ही इम्पार्ट करवाएंगे ना। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो उस भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ जिसके लिए उनको करना चाहिए था, बट दे डिड नॉट डू। और हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन माय कंसर्न, एंड आई रियली वाज ब्लेस्ड with the grace of my gurus that I had been able to do that to some extent, but not to that extent which I wanted to. So I always kept connected with my education, because soon after my marriage, I joined this college for to give it honorary services, and after that I started. I registered myself for the PhD. तो इसलिए मेरा कभी उससे कनेक्शन टूटा ही नहीं, और उसके बाद भी रिसर्च के बाद भी मैं अपने रिसर्च वर्क में जुड़ी रही और आज तक जुड़ी हूँ। तो इसलिए, और ये धीरे धीरे होती चली गई, बहुत प्लान तरीके से नहीं हुआ। स्कूल कॉलेज खुलते चले गए, यूनिवर्सिटी तक हम इस मुकाम तक पहुंच गए। So that is how I am connected with it. Right, ma'am. As you said कि पहले स्कूल कॉलेजेस and now आपने एक यूनिवर्सिटी भी खोली है। So ma'am, during this time, what do you think was your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style? आदर्श नेतृत्व तो वह होता है जहाँ टीम वर्क हो, जहाँ आप अपनी टीम के साथ लेकर चल सकें। लेकिन कई बार वो भी नहीं हो पाता, कई बार तो आपको सिंगल हैंडेडली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसाइसिव पोजीशन में तो कई बार आपको कई लोगों को ओवररूल करके भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, अच्छे मैनेजमेंट में भी, अच्छे राज्य शासन में, शासन और प्रशासन दोनों में, one has to take decisions single-handedly sometimes। पर लीडरशिप दोनों तरीके से होती है। नेतृत्व करने की क्षमता हमारी होनी चाहिए कि हम गाइड कर सकें, हमारे थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, स्पष्टता हो उनमें। और कई बार डिस्कशन से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी स्पष्टता होती है। तो मैं रिजिड नहीं हूँ अपने विचारों को लादने में, लेकिन कई बार मैं जब देखती हूँ कि और कोई बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो मैं आई पुट माई फुट डाउन and then I say, okay, let's go. So let's move ahead. So going way forward, I usually also sit in consultation with my team workers and with my teachers and all. And also sometimes I take a decision. बहुत अच्छा होता है, अच्छी शिक्षकों की टीम होगी तो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, और जब वो नहीं होते हैं तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि नेतृत्व में जो भी लीडर है, किसी भी संस्था का, किसी भी ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सब लोगों को ड्राइव कर सके, मोटिवेट कर सके। आई डोंट नो वेल आई एम कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट, बट आई हैव बीन डूइंग इट। Right, ma'am. You have been doing it since so long. So, what do you see are the biggest challenges for higher education in general and probably for your university specifically as well? हायर एजुकेशन के चैलेंजेस तो शुरू से इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि स्कूल एजुकेशन बहुत रॉटन हो गई है हमारे देश में। स्कूल एजुकेशन, अच्छी स्कूल एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तक सीमित रह गई। अब जब इंग्लिश मीडियम, उसके बाद तो बच्चे 12वीं तक के हमारे बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं है। जो जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो स्कूल जाएं या ना जाएं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इससे जो बच्चे 12वीं के बाद कॉलेज लेवल पर हायर एजुकेशन में आते हैं तो उनको वो सीरियसनेस ही नहीं होती पढ़ने की। और हम जिस एरिया में है वो हमारा मोरल चैलेंजेस, हाउ मेक देम अटेंड द कॉलेज, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ एजुकेशन, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भैया यहाँ तक आओगे तो जो कुछ मिलना है, लेना है, वो ले एजुकेशन। लेकिन बच्चे को जो आजकल ट्रेंड हो गया है नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स का, दैट इज अ मोस्ट सीरियस चैलेंज, जो बहुत ज्यादा बड़ा है। और अभी ऑनलाइन का और ज्यादा हो गया है। इससे फायदा हुआ है कोरोना में, जो ये ऑनलाइन का चल गया है, इससे शायद थोड़ा सा फायदा ये हो गया है कि जो बच्चे नॉन अटेंडिंग थे, अब उनको डिग्री तो चाहिए लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ भी ले, घर ही में पढ़ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लॉ किया, मैं नहीं गई कॉलेज, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, पर क्योंकि मैं पढ़ सकती थी, क्योंकि मैं घर में भी पढ़ सकती थी। पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं हैं कि वो घर में बहुत अच्छे से पढ़ सके। एक जो उचित वातावरण देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर सारे बच्चे घर ही में पढ़े।
किताबें तो उपलब्ध ही है, घर ही में सारे बच्चे पढ़ते, तो स्कूल कॉलेज क्यों खुले? तो सबसे बड़ा चैलेंज है उनको अटेंड करवाना। और दूसरा चैलेंज शिक्षकों, जब बच्चे सीरियस नहीं होते तो शिक्षक भी सीरियस नहीं होते। तो ये छोटी जगह में ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि हर छोटी जगह का बच्चा सोचता है कि मैं बड़ी जगह जाऊं। दमोह का बच्चा सोचेगा मैं सागर और भोपाल चला जाऊं, इंदौर चला जाऊं, और भोपाल इंदौर का बच्चा सोचता है कि मैं बैंगलोर चला जाऊं। तो ये जो चैलेंज है कि एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना है, और अब हमने 12वीं तक पढ़ लिया, अब हमें एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्वालिटी मेंटेन करना, जब अच्छे बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा, यूनिवर्सिटी के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है, पर हम उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा उसको देख लिए हैं कि नहीं, कई बार पहले तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस गाँवों में खुलते थे क्योंकि इतनी जगह चाहिए होती थी। तो अगर वहां बहुत अच्छे चल सकते थे, उस समय चल सकते थे, तो अब जरूर बहुत भीड़ हो गई है कॉलेजेस की हर प्रकार के, लेकिन फिर भी अच्छे चल सकते हैं अगर हम बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो हमारा चैलेंज यही है और हम उसी तरफ ध्यान कर रहे हैं। वी आर स्ट्राइविंग हार्ड टू मेंटेन द एकेडमिक एक्सीलेंस। Right, ma'am. So, these being the challenges, what do you think should be the university's top priority over the next 10 years? Yes, to reach at the top of the top universities of Bharat, and to carve a niche amongst the universities, good universities of the world. And my target is that to make my university internationally famous and it should be known. एकलव्य विश्वविद्यालय का नाम उसकी से भारतीय संस्कृति के ऊपर ये यूनिवर्सिटी जोर देती है, उनके अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। ऐसी छवि भारतवर्ष में और विश्व में बन सके, वह मेरा लक्ष्य है आने वाले 10 वर्षों में। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छे समर्पित, सुशिक्षित, प्रशिक्षित, सुसंस्कृत, भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले शिक्षक चाहिएंगे, और मैं उनकी तलाश में 10 साल तक रहने वाली हूँ। और मतलब 10 साल तक मुझे वैसी तलाश करके उस यूनिवर्सिटी को वैसा बनाना है जो एकलव्य, जिस प्रकार से एकलव्य ने लक्ष्य संधान किया, मुझे भी एक यही लक्ष्य संधान करना है कि इस पर 10 वर्षों तक मैं जीवित रही तो यूनिवर्सिटी ये करेगी। We hope, ma'am, that definitely comes true. Also, ma'am, let's see. Sure, ma'am. Ma'am, how do you tend to establish a healthy relation and environment in your university? Well, हम लोग पूरा एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ वो एक्टिविटी कैलेंडर भी बना रहे हैं, और एक्टिविटी कैलेंडर में शिक्षकों और बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप होंगी, कैसे बच्चों के साथ और ज्यादा इंटरेक्ट किया जा सकता है, उनके साथ और कैसे ज्यादा से ज्यादा संवाद स्थापित किया जा सकता है, और उनकी प्रतिभा को कैसे और निखारा जा सकता है, इन सब की हम वार्षिक कैलेंडर बनाकर हम उनके साथ, और जो बहुत निग्लेक्टेड पक्ष रहता है कि हम फैकल्टी मेंबर्स के साथ बहुत बैठ नहीं पाते अलग से, उनसे सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स, ऑफिशियल मीटिंग्स, एकेडमिक मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कभी कभी उनके परिवारों के साथ बैठना, उनके परिवारों के साथ पिकनिक और एजुकेशनल टूर्स पे जाना, ये भी हम बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं इस बार, और हम इस बात को कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम अपने बच्चों के साथ भी, पुराने एलुमनाई बच्चों के साथ भी, और अभी जो वर्तमान बच्चे होंगे उनके साथ भी हम इसी प्रकार के संबंध स्थापित करेंगे, और इसकी तरफ हम विशेष ध्यान दे रहे हैं ऐसी गतिविधियां करने के लिए। Okay, ma'am, that's actually nice. So, ma'am, to the last question, any suggestions and anything that you would like to tell to the current youth and aspiring students of the future? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं जब भी कभी शॉर्टकट लेने की सोचती हूँ तो मुझे दोबारा से घूमकर दुगनी मेहनत के साथ वो काम करना पड़ता है। तो मैंने देखा है कि बिना मेहनत के, कोई भाग्यशाली होता है तो उसको थोड़ा बहुत मिल सकता है, एक सीमा तक भाग्य से मिलेगा, लेकिन उसके बाद तो कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है कि बच्चे यहाँ आए, जो लैब्स में जाएं, प्रैक्टिकल नॉलेज लें,
हर चीज का, हर विषय का एप्लीकेशन क्या हो सकता है जीवन में, उनके करियर की ग्रोथ में, इस बात पर ध्यान दें। वो तभी होगा जब वो टीचर्स के पास आएंगे। शिक्षक भी तो तभी देगा ना जब वो उससे ग्रहण करने के लिए आएंगे, और ग्रहण करने के लिए विनम्रता पूर्वक आना पड़ता है, अर्जुन बनना पड़ता है, विनम्र होकर टीचर के पास समर्पण करना पड़ता है, तब तक नहीं मिलता है। तो बिना समर्पण किए बोले वहीं बैठे हैं, वहीं से हमको शिक्षा मिल जाए, थोड़ी बहुत मिल भी जाएगी, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं आ पाएगी, गहराई तक नहीं जा पाएंगे। उथला उथला शिक्षा लेने से फायदा नहीं, उसे कोई नहीं चाहता। उनको सिर्फ ये जानने की जरूरत है बच्चों को कि हर एम्प्लॉयर को, अगर उन्हें करियर की ग्रोथ करना है, तो हर एम्प्लॉयर को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो ये कह सके कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू डू दिस, एवर रेडीनेस हो उसमें, सीखने की इच्छा हो उसमें। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, हमें अपने आप तैयार, सीखने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। और हम तैयारी नहीं है, डिग्री मिल गई, डिग्री मिलकर क्या करोगे, कागज का टुकड़ा है अगर अन्यथा तो ठीक है, कहीं दिखा दोगे, कहीं फ्लूक में नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन उस थोड़े दिन बाद उसके बाद क्या, फिर भी तो सीखना पड़ेगा ना, आज नहीं तो उस समय मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जरूरी है कि हम समय रहते मेहनत करें, पुरुषार्थ करें और अच्छे से अपनी शिक्षा को उपयोगी बनाएं। उसके लिए जो भी संसाधन उपलब्ध है, वो महाविद्यालय जाकर हो, विश्वविद्यालय जाकर हो, हमारे शिक्षकों से ले सकते हो हम, वो उन सबको लेने का, जब वो देने बैठे हैं तो लेने के लिए उनको प्रस्तुत होना चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और ये सबसे बड़ा संदेश भी है उनके लिए। Thank you, ma'am. Thank you for coming to the platform and sharing your views. Thank you very much, Sakshi. बहुत धन्यवाद आपका।